Hey guys, welcome to Sriram's IS. In this video, we will be talking about a very dreadful attack carried out on our security forces in Chhattisgarh, Dantewada district by the Naxalites. So, ये एक बहुत बड़ा अटैक है जो कि 2021 के बाद आप कह सकते हो सबसे बड़ा अटैक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर है. In this video, guys, we will be talking about every detail related to this attack. And before we start, I request all of you to like, share this video among your UPSC community. Now, before coming to the details of the attack, I would like to draw your attention to Sriram's IS. Now, guys, we at Sriram IS are serving the nation in giving a comprehensive preparation to UPSC aspirants from past 35 years. Now, what makes Sriram's IS the best choice among the UPSC aspirants is that we provide live question answer sessions daily. We deliver our lecture in a very simple and effective manner. Then we have the quality study material which is required for the exam. And if you know that Sriram's IS, Sriram sir's economics notes are very famous in the UPSC community, then we try to cover all our topics at Sriram's IS from the scratch. That means every topic will be delivered from the basics. And then the faculties that we have at Sriram's IS are the well-renowned faculties in the country, and most of them are having experience more than 20 years. Okay. And if I talk about the wizard of economics and polity itself, the Sriram sir, he has a overall experience of 37 years of mentoring UPSC aspirants. So guys, we at Sriram IS have started our comprehensive batch for UPSC CSC 24. So if you are planning to enroll in UPSC CSC 24, you can get in touch with us at Sriram's IS because we are a channeled partner of Unacademy. Okay, so हम सभी courses, comprehensive courses for UPSC CSC, we are starting on Unacademy, and all the faculties of Sriram's IS will be teaching there. This comprehensive course will cover everything, whether it is your mains answer writing, your interview techniques, your prelims, and obviously the structured courses for all your GS subjects, GS paper 1, 2, 3, 4, including your essays. So the batch has already started from 13th of April. Also, for all those people who are planning to give the UPSC CSC 23, okay, if you are planning to watch some crash courses videos for UPSC 23, again you can get in touch with Sriram IS. So guys, my name is Anshum Verma and this is my little brief introduction. I have a overall experience of 10 years in mentoring UPSC aspirants, and these are my qualifications that you can see on the screen. So चलिए guys, शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में. ये एक वीडियो आपका बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से क्वेश्चंस हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे? सबसे पहले कि वाई नक्सली आर सो इंटरेस्टेड इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या है कि अक्सर हमें यहां पर बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं. ओके, देन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि माओइस्ट अटैक्स के सॉल्यूशन क्या क्या है. What are the basic solutions of Maoism or Naxalism in India? आप इस टॉपिक को लिंक कर सकते हो GS3 मेंस एग्जाम से, एंड ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट्स भी आपको यहां पर इस टॉपिक में, इस वीडियो में मिलेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स. ये एक फोर्स है जो कि इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं. सो गाइस, 26 अप्रैल यानी आज से ठीक 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक अटैक होता है. ये अटैक लगभग 350 किलोमीटर दूर है
आपके छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर से। ओके, 350 किलोमीटर दूर है। और ये अटैक एक आईडी, एक एक्सप्लोसिव अटैक की वजह से हुआ। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस अटैक में अराउंड 50 केजीज ऑफ आईईडी का इस्तेमाल किया गया। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो मैंने कुछ इमेजेस अटैच की हैं न्यूज़पेपर से, आप देख सकते हो कितना बड़ा डिप्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ब्लास्ट होगा। और ये उस व्हीकल की हालत है जो इस अटैक में जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए। ठीक है, सो ये अटैक कैरी आउट करा गया डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जवान्स के ऊपर। ठीक है, उनकी वैन आ रही थी एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद, और 10 जवान, साथ में 10 जवान प्लस एक ड्राइवर इस पूरे अटैक में मारा गया। ठीक है, अच्छा, बहुत हैरान करने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो व्हीकल इस्तेमाल करा जा रहा था वो एक प्राइवेट व्हीकल था। दैट मीन्स प्राइवेट व्हीकल, वो एक पुलिस व्हीकल नहीं था, प्राइवेट व्हीकल था। दैट मीन्स कि नक्सलियों को पता था कि इस व्हीकल में पुलिस ऑफिशियल्स आ रहे हैं। सो एक डेलिब्रेट अटैक था। अब आपको पता है कि पुलिस व्हीकल का क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे इलाकों में पुलिस व्हीकल को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है और ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं पुलिस व्हीकल्स फॉर एनी सच अटैक। सो अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देखें इस अटैक के बारे में, ये अटैक हुआ है अब तक के 2 साल के टाइम पीरियड में सबसे बड़े अटैक्स में से इसको देखा जा रहा है। लास्ट ऐसा बड़ा अटैक हुआ था आपके 2021 में, जहां पर 22 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स शहीद हो गए थे। 22 ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स वर मार्टर्ड। This attack was carried out, this 21 attack was carried out in Sukhma, at the borders of Sukhma and Bijapur district. So, छत्तीसगढ़ में particularly कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब कि यहाँ पर अटैक्स होने के जो चांसेस हैं वो हमेशा बाकी जगहों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। The Naxalites have a huge influence on these belts, on these districts. Now, what are these districts? इन districts को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोर districts के नाम से भी हाईलाइट कर रखा है, so that some extra measures can be taken on them. So ये districts कौन कौन से आ जाते हैं? ये district है आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट। अगर आप यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर डाउन साउथ आपका सुकमा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। देन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ सुकमा है एंड वेस्ट ऑफ दांतेवाड़ा है। यहाँ पर बीच में आपको दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर बस्तर मिलेगा, और यहीं पर है जगदलपुर। अच्छा, हैरानी की बात यह है, इसी जगदलपुर में अभी हाल ही में अमित शाह जी का भी एक सेरेमनी हुई थी, जहाँ पर वो चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थे और उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों को संबोधित किया था। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही ये एक सेरेमनी हुई थी। सो ये कुछ ऐसी कोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर सबसे ज़्यादा नक्सलाइट्स हमले होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर अटैक में जो जिस पर नक्सलियों ने हमला करा है वो एक स्पेशल फोर्स थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स। ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स बेसिकली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है, जिसका काम क्या होगा, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को कैरी आउट करना। ठीक है, एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को कैरी आउट करना, ये इस फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है। नाउ बेसिकली अगर हम थोड़े से हमारे सिक्योरिटी फेलियर्स से कुछ सीख पाएं जो कि पास्ट में कुछ हुए हैं, कुछ अगर हम ऐसे सिक्योरिटी फेलियर से सीख पाए, उसमें से सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर ये था कि जितने भी हमारे पैरामिलिट्री जवान यहाँ पर डिप्लॉय करे जाते थे, चाहे वो सीआरपीएफ से हो या सीआईएसएफ से हो या और कोई भी बटालियन किसी और फोर्स की यहाँ पर लाई जाए, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो इस लोकल टेरेन से इतने कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, लोकल जो ज्योग्राफी है वहाँ, वो उससे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे माओइस्ट हैं वो इस पूरे एरिया के
चप्पे चप्पे को जानते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण हो जाता है कि उन पर अटैक करना बहुत टफ हो जाता है हमारी रेगुलर सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के लिए। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने कुछ ऐसी स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करी हैं इन कुछ वनरेबल हॉस्टाइल सेक्शंस और हॉस्टाइल एरियाज में। जैसे छत्तीसगढ़ ने एक स्पेशल फोर्स बनाई, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स। ये 2008 में बनाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को कैरी आउट करना। ठीक है, पर्टिकुलरली माओइस्ट से लड़ने के लिए ही ये एक फोर्स बनाई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इस फोर्स में हमने लोकलाइज जो लोकल ट्राइबल हैं उनको रिक्रूट करा था। सो इससे दो ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं। एक तो आप लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, दूसरा आप इन नक्सलियों को टैकल करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये जो नक्सली हैं ये लोकल टेरेन, लोकल कल्चर और लोकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो एक बेटर काउंटर यहां पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डीआरजी फोर्स है ये बिल्कुल वैसी ही एक फोर्स है जैसे आपने सुना होगा ग्रे हाउंड। जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये ग्रे हाउंड फोर्स एक ऐसी ही एंटी नक्सल फोर्स किसने, कौन सी स्टेट ने बनाई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरूर बताइएगा। अच्छा, इसी से सिमिलर मैं कुछ और फोर्सेस भी आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ने मिलकर उनमें हेल्प कर कर उसमें उसको ट्रेन करा है। एक ऐसी ही बटालियन हमने डिप्लॉय करी है, बस्तरिया बटालियन। नाउ ये बस्तरिया बटालियन का भी काम यही है, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसमें हमने लोकल को भी पार्टिसिपेट करा है। और यही नहीं, बस्तरिया बटालियन हमारे देश की पहली ऐसी पैरामिलिट्री बटालियन है जहां पर 30% रिजर्वेशन वुमेन का भी है। दैट मीन्स हम वुमेन को भी यहां पर रिक्रूट कर रहे हैं ऐसे फील्ड ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, सो ये अटैक कैरी आउट हुआ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्सेस पर। अब ये अटैक क्यों चैलेंजिंग हो जाता है, आप देख सकते हो इस बस का हाल। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, इस पूरे गेम की स्टोरी क्या थी जो अटैक हुआ। हमारी जो डीआरजी यूनिट थी वो, उनको एक इनपुट मिलता है कि देयर इज अ फायर, देयर आर सम ग्रुप ऑफ माओइस्ट इन नहाड़ी विलेज, जो कि अरनपुर से लगभग 7 किलोमीटर है। तो उन माओइस्ट को काउंटर करने के लिए इस इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस पर ये यूनिट वहां पहुंची, उनके साथ एक गन फायर एक्सचेंज करा। दैट मीन्स दोनों साइड से फायरिंग हुई और ऐसा माना जा रहा है कि 2 सस्पेक्टेड माओइस्ट को इन्होंने गोली भी मारी, बट वो वहां से बचकर भाग लिए। ठीक है, अब जब ये इनको घेर लिया गया, जो 2 घायल थे, बाकी जो भाग गए, जो इनमें से बचे हुए 2 घायल थे, उनको जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स वापस लाया जा रहा था, यानी उनको अरेस्ट करके वापस लाया जा रहा था, तो ये अटैक कैरी आउट करा गया। इसके अंदर 2 गाड़ियां चल रही थी। ओके, 2 व्हीकल्स चल रहे थे और डीआरजी ने डेलिब्रेटली प्राइवेट व्हीकल्स का सहारा लिया। ठीक है, प्राइवेट व्हीकल्स ले रखे थे, हायर कर रखे थे, जिससे ये ना पता चले कि एग्जैक्टली पुलिस व्हीकल कौन सा है, और उनका जो कहते हैं ना डिस्गाइज फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि दोनों व्हीकल थोड़े से गैप पर थे। अब प्राइवेट व्हीकल में जब वो इस लोकेशन पे आए तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है और पर्टिकुलरली एक गाड़ी को टारगेट करा जाता है जिसके अंदर हमारे 10 जवान शामिल थे। नाउ इससे हमें स्ट्रेट ये पता चलता है, दैट मीन्स कि कोई इस इंटेलिजेंस को जानता था कि डीआरजी कैसे मूव कर रही है और किस व्हीकल के अंदर जवान है, और उन्होंने लगभग 5 से 6 फीट रोड के नीचे ये आईडी प्लांट करा और एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पर, एकदम जैसे मूवीज में देखा जाता है, एग्जैक्ट मोमेंट पर उसको डेटोनेट करा, जिससे गाड़ी का बहुत बुरा हाल हुआ और जवानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ज्यादा कि सभी जितने भी जवान और ड्राइवर उस बस में मौजूद था, सबकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है।
ठीक है, सो इतना ज्यादा डेडली ये अटैक था। दैट मीन्स माओइस्ट का भी लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग काफी स्ट्रांग है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। नाउ इसमें अगर हम बात करें, वी हैव द इंफॉर्मेशन दैट हु ऑल आर मार्टर्ड इन दिस, और उनके नाम जो वहां के आईजी हैं उन्होंने पब्लिसाइज कर दिए हैं। वो नाम मैं भी आप लोगों के लिए एक बार आपको बता देता हूं। वो नाम है जोगा सोथी, मुन्नाराम कटटी, संतोष टामो, दुलगो मंडावी, लखमू मार्कम, जोगा करवासी, हरिराम मंडावी, राजूराम कटम, जयराम पोडियम, जगदीश खवासी एंड द व्हीकल ड्राइवर जिसका नाम था दानी राम यादव। ये वो शहीद हैं जिन्होंने इस देश की सेवा करने में अपने प्राण की आहुति दे दी। ओके, हाउएवर ये भी बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया, कि जो जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जिस व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे थे वो प्राइवेट व्हीकल था, और ये डेलिबरेटली करा गया कि पुलिस व्हीकल में ना जाया जा सके। वजह क्या थी? ताकि पुलिस व्हीकल्स को बहुत आसानी से माओइस्ट रिकग्नाइज कर लेते हैं, और कभी भी कोई ऐसा ऑपरेशन कैरी आउट करना होता है तो वो पहले से ही अपने सोर्सेज के थ्रू आगे कॉन्टैक्ट पहुंचा देते हैं, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जिससे अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये था। इस पूरे अटैक में हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी दी, और हमारे देश के गृह मंत्री इन्होंने भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी ये ट्वीट करके। सो इफ यू रीड द ट्वीट ऑफ नरेंद्र मोदी, he has strongly condemned the attack on the Chhattisgarh police in Dantewada, and he also paid the tributes to the brave personals who have lost their lives in the attack. Okay, and even if you see the tweet of Amit Shah, he is very anguished by the cowardly attack on the Chhattisgarh police force, and he has spoken to the Chhattisgarh chief minister, and he assured all possible assistance to the state government from the center. Okay, so this was a very big attack. Now guys, what makes this attack different? ये अटैक डिफरेंट क्यों हो जाता है बाकी रेगुलर अटैक से? एक्चुअली जितने भी ये नक्सलाइट्स हैं, ओके, ऑल द नक्सलाइट्स, दे हैव अ कॉमन स्ट्रैटेजी. देयर स्ट्रैटेजी इन मिलिट्री टर्म्स आर कॉल्ड एज TCOC, फुल फॉर्म टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन. नाउ क्या मतलब होता है इस कैंपेन का? नाउ बेसिकली जो नक्सली हमले होते हैं, जितने भी ये नक्सली हमले करते हैं, ये साल के कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही अपने अटैक्स बढ़ा देते हैं. वो टाइम फ्रेम कौन सा है? वो टाइम फ्रेम लगभग आपका फेब से शुरू होता है और जून जुलाई तक चलता है. ये वो टाइम पीरियड भी है जब हमारे देश में इंडियन मॉनसून इनएक्टिव रहता है. अब आप सबको पता है कि मॉनसून लगभग जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में इंडिया में आता है. सो जैसे ही मॉनसून आएगा, इन पूरे इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एरिया और भी ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो जाता है. द एरिया टर्न्स आउट टू बी इनएक्सेसिबल. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाटर लेवल, द रिवर्स विद मोर वाटर, द एरिया टर्न माशी, दलदली इलाका बन जाएगा. So this type of topography is difficult not just for the security forces, but also it gets difficult for the Maoist. अब जब भी ज्योग्राफी टफ होगी तो मूवमेंट उतना ही टफ हो जाएगा सभी इंसानों का. ठीक है, तो चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो. सो इसलिए ज्यादातर अटैक्स आप देखोगे कि लगभग इस टाइम पर ज्यादा अटैक्स आते हैं. ठीक है, फेब से जून के पीरियड में ज्यादा अटैक आप देखोगे नक्सलियों के रहते हैं, और ये वाला अटैक भी इसी टाइम पीरियड के साथ कोइंसाइड करता है. ठीक है, सो इसलिए ये अटैक अपने आप में यूनिक हो जाता है. अब अगर हम बहुत ही ब्रॉडली यूपीएससी GS3 के पर्सपेक्टिव से, ओके, यूपीएससी GS3 के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हम ये देखेंगे कि क्या रीजंस है इस पूरे एक्सट्रीमिज्म के, नक्सलिज्म के हमारे देश में.
यही नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बट ये सारे रीजंस आप एज इट इज आप देखोगे ये सभी उन स्टेट्स में कॉमन है जो स्टेट्स अभी हम जो नक्सलाई प्रभावित स्टेट्स हैं, जिनको हमने रेड कॉरिडोर के नाम से डेजिग्नेट करा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि हम इन स्टेट्स को रेड कॉरिडोर स्टेट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, ऑल दो स्टेट्स विच आर अफेक्टेड विद नक्सलिज्म, व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर स्टेट्स? माय क्वेश्चन इज, अब आंसर इसका ये मत कहना क्योंकि लेफ्टिस्ट का रंग लाल होता है, उनके झंडे का रंग लाल होता है, क्योंकि ये वॉलेंट अटैक है, रेवोल्यूशन है, इस वजह से रेड उसको सिग्निफाई करा है। ये रीजन भी है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। क्या इसके अलावा कोई और रीजन है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या वो ब्रॉडर रीजंस है जिसकी वजह से हमारे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। सबसे पहला रीजन है ट्राइबल डिसकंटेंट। अब आपको ये पता है कि ज्यादातर ऐसे इलाके और ऐसी स्टेट्स जो नक्सलिज्म से प्रभावित हैं, वो या तो बहुत ही सोशली डिप्राइव्ड है, सामाजिक तौर पर बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है, और वो ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जो जंगल हैं और उनमें रहने वाले कुछ जनजातियां हैं, वो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है। ओके, सो सबसे पहले कुछ ऐसे एक्ट्स, कुछ ऐसे कानून जो कि पहले ब्रिटिशर्स ने बनाए और फिर उसी से मिलते जुलते कानून हमारी सरकारों ने भी बनाए, ये एक सबसे बड़ा रीजन बन जाता है जिससे एक डिसकंटेंट बनता है सरकार के अगेंस्ट और डिससेटिस्फैक्शन बनता है सरकार के अगेंस्ट। उसमें से एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब इस एक्ट के अंदर सभी ट्राइबल्स को प्रोहिबिट कर दिया जाता है कि वो जंगल में फ्रीली आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, जंगल की रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अपने ही लाइवलीहुड से उनको दूर कर दिया, ये एक डिससेटिस्फैक्शन है। देन इतनी सारी माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इतने सारे रिसोर्स एलोकेशन प्रोजेक्ट, या कोई डैम बन रहा है, कोई माइन खुद रही है, या कहीं से जंगल काटे जाने हैं हाईवे के लिए। अब ये सब चीजें एक तरीके से ट्राइबल लोगों पर आके पड़ती है और उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, यानी सरकार के प्रोजेक्ट्स की वजह से उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। अब जब घर छोड़ के जाना पड़ता है तो हमारे देश में रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं होता, उनको बहुत अच्छे से हम नई जगह पर, जिसे कहते हैं ना हिंदी में पुनर्विस्थापन, उनका बहुत टफ हो जाता है। सो ये एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से और भी ज्यादा डिसकंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट में प्रभावित लोग, all those people who are getting affected with the displacement of the tribal population, they become the vulnerable targets of the Naxalites. वो बन जाते हैं सबसे vulnerable targets नक्सलियों के। ठीक है, सो ऐसे लोगों को जनरली नक्सली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि सरकार ने तुम्हारे साथ ये करा तो हमें सरकार से बदला लेना होगा, और ज्यादातर ऐसे लोगों के पास कोई भी डिसेंट लाइवलीहुड अवेलेबल नहीं होता। अब लाइवलीहुड ना होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति आए और आपको कहे कि हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ बंदूक उठा के घूमना है और सरकार पर अटैक करना है, तो ऐसे में जो ऑलरेडी प्रभावित है, जिसको खाने पीने की कमी है, जिसका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है ऐसा बंदा ऐसे लोगों से ज्यादा प्रभावित हो सकता है। और ये एक मेजर कारण भी है हमारे देश में, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला ये कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में नक्सली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बहुत और भी कई सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे देश में है। ठीक है, जिसकी वजह से नक्सली अटैक्स काफ़ी होते रहते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि प्रॉपर बेसिक अमेनिटीज़ का अभाव। ऑल दीज Naxali or left-wing extremist regions, they lack in some basic amenities. ठीक है, इनमें कुछ बेसिक अमेनिटीज का अभाव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, जैसे स्कूल्स। सो हॉस्पिटल, स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, इन सब की कमी की वजह से यू विल सी
that more and more discontent rises among the people against the state. ठीक है, एक और रीजन जो कई एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं वो है कि एक प्रॉपर इंटेलिजेंस की कमी होना, नक्सलाइट्स के अगेंस्ट फाइट करना। प्रॉपर इंटेलिजेंस हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं गैदर कर पाती है, जिसकी वजह से ये अटैक्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ गवर्नेंस रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आज भी हमारे देश में हर गांव को रोड्स नहीं जोड़ती हैं। बहुत सारे गांव आज भी अनटच्ड है, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या रोड्स हैं भी तो रोड्स की कंडीशन बहुत खराब है। सो गवर्नेंस, आप कह सकते हो गवर्नेंस फेलियर है ये, बेसिक एमिनिटीज का फेलियर है ये। और ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव मदद भी नहीं मिलती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मदद का मतलब, कोई भी सरकारी कर्मचारी, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डीलिंग विद सम नॉर्मल ट्राइबल पीपल, they do not talk to them with sympathy, with apathy. Okay, because they are the government servant, their job is to serve the people. But अब आपको भी पता है, किसी भी सरकारी काम या किसी भी सरकारी कर्मचारी से जब हम जनरली बात करते हैं तो वो ज्यादातर उनकी टोन रूड ही होती है। सो एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से फर्दर आप देखोगे वो और डेप्रीवेशन की ओर चले जाते हैं। सरकारी स्कीम्स उन तक नहीं पहुंचती। कुछ बेसिक स्कीम्स, जैसे उन्हें नहीं पता होगा मनरेगा जैसी स्कीम भी एग्जिस्ट करती है, उन्हें नहीं पता होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत उनको फ्री खाना देती है सरकार। अब इन सारे स्कीम्स का उन तक ना पहुंचना जो उनके सोशो इकोनॉमिक गैप को और ज्यादा वाइडन कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, सो ये एक और रीजन हो जाता है जिसकी वजह से आप देखोगे प्रॉब्लम्स और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। ठीक है, अब इसका वेरी क्विकली अगर हम देखें क्या सोल्यूशन है, ठीक है, क्या सोल्यूशन देखा जा सकता है इस नक्सली प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाय द वे, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के एक रेगुलर प्लस कोर्स में। ठीक है, सो वेरी क्विकली मैं बात करता हूँ ग्रेहाउंड्स। ये एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है जो 1989 में बनी। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश। आई होप अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे। सो दिस वाज अ फोर्स दैट वाज क्रिएटेड इन आंध्र प्रदेश। देन फिर हमने एक स्पेशल ऑपरेशन नक्सलियों को टारगेट करने के लिए लॉन्च करा था, वो था ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मैसिव डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की करी इन नक्सली अफेक्टेड रीजन्स में। फिर हमने कुछ मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जहां पर ऐसे इलाकों तक हमने फ़ोन पहुंचाए ताकि इनकी कनेक्टिविटी इन पूरे बाकी सारे देश से बढ़ सके। देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया एक प्रोग्राम जहां पर सभी की सोशल इश्यूज पर बात की जाएगी, उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। की सोशल इश्यूज से मतलब जो बेसिक हेल्थ अमेनिटीज हैं, जैसे उसको नापने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन फर्टर्निटी मोर्टेलिटी रेट, ओके, IMR, FMR और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, सेक्स रेशो, ये कुछ की इंडिकेटर्स है। लिटरेसी रेट, ये कुछ की इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने का टारगेट यहाँ पर सरकार ने करा है। और MHA ने आई गेस 36 डिस्ट्रिक्ट्स अलग से सेलेक्ट करी हैं इन नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन से, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर काम करेंगी। ये एक सोल्यूशन है। उसके बाद एक ब्रॉडर सोल्यूशन इस नक्सली प्रॉब्लम का क्या बन के आता है, वो आता है समाधान प्रोजेक्ट। ये सरकार का MHA का वन स्टॉप सोल्यूशन है, यानी शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तक, शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग तक एक सोल्यूशन जो कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इस समाधान का फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, यानी
एक ऐसे लीडर वहां पर डिप्लॉय करना जो कि एफिशिएंट हो टैकल करने में इस प्रॉब्लम का। जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईपीएस डेपुटेशन। ज्यादातर आईपीएस को इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेड बनाकर वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब इससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आईपीएस को कोर बटालियन ट्रेनिंग नहीं मिलती है जैसे कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस में मिलती है, पैरामिलिट्री में मिलती है। तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग का अभाव है, इसलिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। साथ में जो इनके ऑलरेडी कमांडेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, थोड़ा उनका प्रमोशन टाइमली कर सकते हैं ताकि वो उस लेवल पर एक कमांडिंग पोजीशन ले ले। देन एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हाई एंड टेक्नोलॉजीज लाइक यूएवी ड्रोन्स, थर्मल स्कैनिंग, और एक एग्रेसिव अटैक्स के रूप में हम नक्सलियों को दबाने की कोशिश करेंगे। बट इसके साथ साथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, हम बाकी यूथ में भी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। इस स्किल डेवलपमेंट में, मोटिवेशन में और ट्रेनिंग में सिर्फ यूथ का ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होगा ताकि वो और अच्छे से काउंटर कर सके इन नक्सलाइट्स को। एंड देन इंटेलिजेंस गैदरिंग, लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर इंटरनेशनल गैदरिंग तक हम काम करेंगे। देन डैशबोर्ड ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरिया, हम वो सारे सोशल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे जैसे मैंने बताया, आईएमआर, एमएमआर, मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट, देन चाइल्ड सेक्स रेशो, इस तरह के इलिटरेसी रेट सबको हम इंक्लूड करेंगे। टेक्नोलॉजी को डीपन करा जाएगा, स्ट्रॉन्गर करा जाएगा सो दैट मोर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन। देन एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर का मतलब हर एक लोकलाइज इलाके के लिए एक अलग प्लान, एक अलग रणनीति। जैसे छत्तीसगढ़ में अलग तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस काम करेंगी, आंध्र प्रदेश में अलग करेंगी, क्योंकि हर जगह की जोग्राफिकल टेरेन अलग अलग है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी फाइनेंसिंग पर चोट पहुंचाना, ठीक है, किसी भी तरीके से उनको फाइनेंसेस ना मिलने पाए, इसका कोशिश करना, ठीक है, टू स्टॉप द फाइनेंसिंग ऑफ दीज नक्सलाइट पीपल, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर पैसा रोक दिया तो उनकी आपने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, बिकॉज दिस स्पॉन्सर्स एवरीथिंग। सो ये था सलूशन पूरे नक्सलाइट प्रॉब्लम का पूरे हमारे देश में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ श्रीराम्स आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यूपीएससी पर हमारा सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं यूजिंग अ कोड श्रीराम्स। इससे आपको डिफरेंट टाइम पर बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। अभी फिलहाल 25% का स्ट्रेट ऑफ चल रहा है। आप ये कोड यूज कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म की, क्या इसका इतिहास था, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रेजेंट, और व्हाट विल बी द फ्यूचर एंड द वे फॉरवर्ड। और यही नहीं, हम आंसर राइटिंग पर भी बात करेंगे कि कैसे हम GS3 इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी लगभग आपकी 50 से 60 मार्क्स की हर साल GS3 का पार्ट बनती है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आपको GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी में मिलेंगे और वो यही सब टॉपिक्स होते हैं। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।